Good morning, students. Please mute yourself. Avoid the background music. I'm audible to you. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Chalo, let's start in 2 minutes. Huh? Let everybody join. Good morning, Tarun. So this is the first class that you're attending for physics, na? Isn't it? Ekta, Parth, Apur, Anushka, Palak. Palak is in class 8th. 8th. Okay, Krish, Umang, Sanskar, Tarun. Swarna, Vikas. Too many people. चलो, let's start. One more minute, then start करते हैं. Everybody has muted themselves. Good. Gagan. Okay. So I hope you have your books with you. We'll be starting chapter uh, number 8. That is motion. ठीक है? Motion पढ़ेंगे अपन. ठीक है आज? Book ले लेना. Read the NCERT. Reading the NCERT is very important. Please don't bypass the NCERT. Every word given in the NCERT is like of use. Okay. So let's start with chapter motion. Everybody have purchased the book or they have taken the book from somewhere. If you don't have, you can go for an PDF or something. है ना? Is it clear? चलो start करते हैं. तो सबसे पहले बेटा अपन start करते हैं motion से. Let me share the screen. चलो let me ask you one by one. Let's go from Parth. Parth, you can unmute yourself. What is science, Parth? Are you there, Parth? Parth is not responding. Chalo, let's start with Ekta. What is science, Ekta? How would you define science? अभी इतने साल से पढ़ रहे हो science, कुछ तो पता होगा ना what is science and everything. You can unmute and tell Ekta. Am I audible? Okay. और कौन एक्टिव है? दिव्या, उमंग, अनुष्का, प्रियांशु. उमंग, nobody is audible. Is Umang there? Are you using microphone or something? You cannot respond. Hello. Am I audible, beta? What happened? Nobody's Yes, responding. sir.
Okay, I think it is the net which is very slow, isn't it? The response time is very slow. चलो ठीक है. तो पहले we will start with the basics की what is science. तो see, every natural phenomena that is happening around you, it comprises science. Whether it is blowing of the wind, rainfall, tsunami, earthquake, everything. The study of living beings, physical laws. Tarun, good Tarun. ठीक है. So everything that is happening around you involves science, है ना? Now, if you talk about physics, physics deals with all the laws of nature, friction, then thunderstorm, है ना, blowing of everything. That all the laws of nature are contained in physics. ठीक है. Wait a minute. So now we will start chapter 8, that is motion. ठीक है. अच्छा, you must have heard about physical quantities. How many of you have heard about physical quantity? You can send the chat messages to the group. Everybody can see it. Have you heard about physical quantities? What are physical quantities? Anybody who can answer? Why does it feel as if you have not studied anything in class 8? This is the first time you are hearing Oppo A83. Please rename yourself, else I'll remove you from the meeting. Swarna Mathli Singh, all the quantities that can be measured. You can unmute yourself and you can tell the answer to the entire class. Okay? It's good to have a two-way communication rather than being one way. इसमें क्या आवाज हम लोग की खराब है क्या, या गला बैठ गया है? दिव्यान, चलो ठीक है. So what are physical quantities? All the quantities that can be measured are called physical quantities. ठीक है. एक मिनट बेटा, एक मिनट होल्ड करना. हेलो, आर यू देयर? कौन कौन है यार, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता, बताओ क्लास में. चलो ठीक है. ऑल द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर मोशन, है ना. अब मोशन क्या होता है? मोशन इज एनीथिंग विच कैन मूव इज कॉल्ड मोशन. ठीक, मतलब मोशन हो रहा है मतलब मूवमेंट हो रहा है, ये एक बेसिक डेफिनेशन है. बट फिजिक्स में देयर इज अ डिफरेंट मीनिंग ऑफ मोशन ऑल एंड ऑल टुगेदर. ओके, तो हु कैन टेल मी व्हाट इज मोशन? कौन बताएगा, बताओ किसको पता है मोशन क्या है इन टर्म्स ऑफ Any फिजिक्स? any object that change their Moving. motion or time is called हाँ, motion. वन एट अ टाइम. हु इज स्पीकिंग? पहले किस लड़के ने बोला? Sohan Tripathi. ओके, टेल बेटा, क्या बोला बता आपने? दिया. अच्छा, बता दिया, फिर से नहीं And बताओगे? an object that change their motion in equal object that change their motion हाँ. in equal interval of time is called motion. Okay, any object which changes its position with respect to a fixed point with the passage of time is said to be in motion, है ना. चलो देखो अपन बताते हैं कैसे. ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ. Are you able to see the whiteboard? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Let me add a new page. See, suppose this is the coordinate axis given to us. ये suppose आपका x axis हो गया, ये आपका y axis हो गया, and this is the origin. ठीक है. इनिशियली सपोज करो कोई पॉइंट, कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है. ठीक, तो
एक वर्ड होता है पोजीशन वेक्टर। अभी वी विल रीड अबाउट वेक्टर क्वांटिटीज, बट अभी सुन लो पोजीशन वेक्टर क्या होता है। अब नाम ही है पोजीशन वेक्टर, तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब ओरिजिन क्या है? ओरिजिन इज अ फिक्स पॉइंट। जैसे आपका रूम है, रूम के 4 कॉर्नर है, तो कोई भी एक कॉर्नर आपका फिक्स पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी आप ले सकते हो, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं अभी पॉइंट ए की बात करूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट ए, तो व्हाट कैन यू सी दैट सपोज ये दिस इज द पोजीशन वेक्टर फॉर पॉइंट ए, ये ओ ए, ठीक है। फिर सपोज आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम टी, द ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड टू पॉइंट बी, वो ए से उठकर बी पर चला गया। तो अब उसका नया पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? उसका नया पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओ बी। ये इसका नया पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट गया कहाँ से बेटा? ऑब्जेक्ट गया ए से बी तक, है ना। मैं थोड़ा डॉटेड ऐसे बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट गया ए से बी तक। पहले पोजीशन वेक्टर क्या था? ओ ए। अब नया पोजीशन क्या है? ओ बी। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो चेंज हो गया। और किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू दिस फिक्स पॉइंट विच इज द ओरिजिन। और किसके साथ? विथ द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, ध्यान रखना, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, समय हमेशा आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो हाउ कैन यू डिफाइन मोशन? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्लियर है इतना डेफिनेशन? Yes, sir. You don't have to Yes, memorize sir. anything. It's like Yes, sir. एक बार समझ लोगे तो फिर वो कभी भूलेगा नहीं। You can also teach your upcoming generation, ठीक है। So an object is said to be in motion if it changes its position with the passage with respect to a fixed point with the passage of time, ठीक है। समय किसी के लिए रुकेगा नहीं। तो ये मोशन की डेफिनेशन हो गई। अब किसी ने कहा रेस्ट को डिफाइन करो, तो ये सपोज कर लो ये जो ऑब्जेक्ट है ये पॉइंट बी पर 11 बजे आ गया, ठीक। और 12 बजे भी ये पॉइंट बी पर ही है, तो क्या इसने कुछ मोशन किया? नहीं किया। इसका जो पोजीशन था एट 11 o'clock वो ओ बी था, और 12 o'clock पे भी क्या है? ओ बी है। तो क्या इसका पोजीशन चेंज हुआ? पोजीशन इसका चेंज नहीं हुआ। तो रेस्ट को आप कैसे डिफाइन कर दोगे? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो डेफिनेशन सेम है रेस्ट और मोशन की, बस मोशन में डज नॉट लग जाएगा, ठीक है। और रेस्ट में मतलब पोजीशन वो चेंज करेगा। तो अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो मोशन में है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो रेस्ट में है। और आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप एग्जैक्टली नहीं डिफाइन कर पाओगे कि मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। क्योंकि अब मान लो मैं फिक्स पॉइंट नहीं लेता हूँ। जैसे मान लो क्लास है, क्लास में टीचर्स, तो अभी तो क्लास तुम लोग नहीं जा रहे हो, मान लो ये क्लास है, ठीक है। हु इज योर फेवरेट टीचर? क्लास 8 तक तुम्हारा फेवरेट टीचर कौन था? तो एक नाम बताओ। हम्म? कोई फेवरेट टीचर नहीं था तुम्हारा? सेवेंथ का बता दो, एट्थ में तो खैर पढ़े नहीं हो। सेवेंथ का बता दो, सिक्स का बता दो। हम्म? Das, ma'am. दास मैडम, किसकी है दास मैडम फेवरेट? पलक मैडम, पलक की है। Swarna, Swarna. पढ़ना की? अच्छा, इसमें बस पलक ही दिख रहा है यार मेरे को। अच्छा, ये नीचे स्क्रॉल करना पड़ता है। Me also. ओके ओके, चलो ठीक है। बहुत सारे टीचर्स, टीचर्स बोल रहा हूँ, स्टूडेंट की दास मैडम फेवरेट टीचर है। मान लो दास मैडम क्लास में बैठ के पढ़ा रही है, ठीक है। ये दास मैडम बैठी है। अब मान लो ये फर्स्ट रो में स्वर्णा बैठी है, सेकंड रो में सोम बैठा है, और मान लो थर्ड रो में दिव्या बैठी है, ठीक है। तो अगर मैं पोजीशन फिक्स नहीं करता हूँ तो क्या ये बोलेगी कि दास मैडम मेरे करीब है, मुझसे 1 मीटर दूर है। इसने बोला दास मैडम मुझसे 2 मीटर दूर है। इसने बोला दास मैडम मुझसे 3 मीटर दूर है। तो सबके लिए फिर डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा ना, तो एक पर्टिकुलर लोकेशन नहीं मिल पाएगी दास मैडम की। लेकिन अगर मान लो मैंने दास मैडम की पोजीशन यहाँ से फिक्स कर दी, ये मान लो ओरिजिन मान लिया इस कोने को, ठीक है। कोई भी एक कोना आप ओरिजिन मान सकते हो। अब यहाँ से मैंने इनका डिस्टेंस ले लिया, तो यहाँ से सबके लिए जो डिस्टेंस है वो सेम आएगा कि भाई दास मैडम ओरिजिन से 1 मीटर दूर है, सपोज ऐसा। तो इसीलिए फिक्स पॉइंट डिसाइड करना जरूरी है, नहीं तो
सबके लिए आंसर अलग अलग आएगा, ठीक है? क्लियर है चीज? Yes. अनुष्का? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आराम से बोलो, एकदम मिलिट्री स्टाइल में, ठीक है? मोहित मैम, मोहित मेरे को मैम बोल रहा है। अरे यार मैम नहीं हूँ मैं, कितने लोग मैसेज करते रहते हैं मैम मैम करके, ठीक है? आप समझ गया ना, मैम नहीं हूँ। हाँ चलो, ये हो गया इतना। अब रेस्ट और मोशन डिफाइन हो गया। अब इसके बाद बेटा दो चीज जो आपको पढ़नी है, आर्यन स्टेयर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पढ़ना है, वो है टाइप ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है? पहले देख लो, पहले दो प्रकार की क्वांटिटी है बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। मेरी राइटिंग इतनी खराब क्यों आ रही है? इतनी खराब तो है नहीं। नंबर वन इज एब्सोल्यूट एंड नंबर टू इज रिलेटिव, ठीक? एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्वांटिटी। एब्सोल्यूट क्वांटिटीज आर दोज एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है? कंप्लीट। तो एब्सोल्यूट क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज हुज वैल्यू इज फिक्स, जिसकी वैल्यू फिक्स है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है? जैसे मम्मी ने कहा कि 1 किलो शक्कर ले आओ, शुगर। तुम 1 किलो शक्कर ले आए, फिर तुम्हारा घर में झगड़ा हो गया, तुम घर छोड़ के चले गए, ठीक है? तुम अमेरिका चले गए भाग के। अगर तुम्हारे पास वो 1 किलो शक्कर है उस समय, तो इंडिया में भी 1 किलो रहेगा, अमेरिका में भी 1 किलो रहेगा, पाकिस्तान जाओगे वहां भी 1 किलो रहेगा, इसका वैल्यू तो चेंज नहीं होगा ना। तो अगर फिजिक्स के टर्म्स में बात करें, किलोग्राम किसका यूनिट होता है? किलोग्राम मास का यूनिट होता है। तो मास एक ऐसा क्वांटिटी है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है ना। और कोई आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लो मेरे पास ये मार्कर है, मेरा वीडियो दिख रहा है आप लोग को? एम आई विजिबल टू यू? Yes, sir. Yes, वाह, sir. Yes, sir. Yes, 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 sir. sir. हाँ हाँ ठीक है। इफ आई एम शोइंग यू दिस पेन, ठीक है, तो मान लो इस पेन की लेंथ है सपोज 10 सेंटीमीटर। तो चाहे मैं अपने घर से पढ़ाऊँ, चाहे मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ, चाहे मैं स्कूल चला जाऊँ, उसकी लेंथ तो 10 सेंटीमीटर रहेगी ना, मतलब जब तक मैं उसको तोड़ू नहीं। तो इसकी लेंथ भी कैसी है? फिक्स है। तो लेंथ भी कैसा है? एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। द क्वांटिटीज whose value is fixed या remain same, पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होती है ना। जैसे लोग अपने रंग बदल लेते हैं, वैसे ये नहीं है। तो एब्सोल्यूट क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज whose value remains same। तो मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया। अच्छा, टाइम में कुछ लोग बोलते हैं, अरे अरे सर यहाँ अभी इंडिया का टाइम जोन तो अलग है, अमेरिका का अलग है। बट अगर मैं समय के पास होने की बात करूँ, अगर यहाँ पे 1 घंटा पास होगा, तो अमेरिका में भी 1 आवर पास होगा। घड़ी का जो पेस है वो सेम है, ठीक है? तो लेंथ, टाइम, मास, ये सब एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अच्छा, अपने को जो चैप्टर में पढ़ना है, ये तो ऊपरी नॉलेज था। अपने को जो चैप्टर में पढ़ना है वो है रिलेटिव क्वांटिटी, ठीक? अब रिलेटिव होता है ना, रिलेटिव मतलब क्या होता है हिंदी में? सबके रिलेटिव होते हैं ना। हम्म, क्या होता है रिलेटिव का मतलब? हु आर रिलेटिव्स? रिश्तेदार। हाँ रिश्तेदार। कौन बोला? एक तो समझ में नहीं आता कौन बोलता है कौन नहीं बोलता। गगन। गगन, वाह गुड गगन। देखो यहाँ पे, तो जैसे गगन का मैंने ले लिया एग्जाम्पल, ठीक? अब रिलेटिव क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज हुज वैल्यू, जिसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है? चेंज होती है, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और पर्सन टू पर्सन और टाइम टू टाइम, ठीक है? अब जैसे गगन का मैंने एग्जांपल ले लिया, गगन इज सन टू अ फादर, है ना? सन टू अ मदर, अपने पापा का बेटा है, अपनी मम्मी का बेटा है। इफ गगन हैज अ सिस्टर, तो उसका ब्रदर हो गया गगन, ठीक है? तो गगन का फादर के साथ अलग रिलेशन है, चलो मदर फादर के लिए तो सेम है। सिस्टर है तो उसके लिए वो ब्रदर बन गया, है ना? फिर गगन बड़ा हो जाएगा, गगन विल गेट मैरिड, तो गगन क्या बन जाएगा? हस बैंड बन जाएगा। फिर गगन विल हैव किड्स, तो फिर गगन फादर बन जाएगा। फिर गगन के बच्चों के उनकी शादी होगी, तो फिर गगन ग्रैंड फादर बन जाएगा, ग्रैंड मैटरनल ग्रैंड फादर बन जाएगा। मैं ग्रैंड मदर बोलने वाला था। तो क्या हो रहा है कि जो गगन का रिलेशन है डिफरेंट पर्सन के साथ, वो कैसा है? डिफरेंट है। किसी के लिए, जैसे मेरे लिए स्टूडेंट है, आपके लिए फ्रेंड है, किसी का दुश्मन होगा, किसी का सन है, किसी का ब्रदर है, किसी का हस्बैंड है। तो रिलेटिव क्वांटिटीज मतलब जो इसकी वैल्यू चेंज होती है। तो ये तो एक जनरल एग्जांपल हो गया।
अब फिजिक्स के टर्म्स की ये क्लियर है इतना कि रिलेटिव क्वांटिटी क्या होती है? एग्जांपल क्लियर है? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. Yes, गगन yes. गगन को बुरा तो नहीं लगा कि गगन ने बुरा मान लिया रे सर ने भी शादी करवा दी? हाँ No, sir. हाँ ठीक है, वो तो होना ही है ना, तो आज नहीं तो कल होगी, तो उसमें क्या है ना। एग्जाम्पल सर एग्जाम्पल, साइंस में एग्जाम्पल देके पढ़ोगे तभी कुछ होगा, नहीं तो फिर वैसे फिर समझ मतलब रटना अच्छी बात नहीं है, ऐसे एग्जाम्पल रहे कि आपको जिंदगी भर ना बोले, ठीक है। चलो, लेकिन मन में शादी के लड्डू मत फोड़ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया। अब अपने को जो रिलेटिव क्वांटिटी पढ़नी है इस चैप्टर में, वो पढ़नी है रेस्ट और मोशन। कौन सी पढ़नी है? रेस्ट एंड मोशन, है ना। अब आपको क्या पता चल गया? रिलेटिव क्वांटिटी की वैल्यू फिक्स नहीं है ना। किसी के लिए कुछ और है, किसी के लिए कुछ और है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं रेस्ट और मोशन की भी बात करूं तो एक ऑब्जेक्ट किसी के लिए रेस्ट में हो सकता है और वही ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट, किसी के लिए मोशन में हो सकता है। एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। तुम लोग में से एस्ट्रोनॉट किसको बन रहा है? स्पेस का किसका है, मतलब ये एस्ट्रोलॉजी या स्पेस साइंस में किसको इंटरेस्ट है? मेरे को मेरे को नाम तो बता दो बेटा, वैसे मेरे को समझ में था कौन बोल रहा है। सोम त्रिपाठी। सोम त्रिपाठी। ओके, सोम त्रिपाठी को इंटरेस्ट है, और किसी को नहीं है? बस सोम को ही है? ओके चलो, अच्छी बात है। सोम है जैसे ना, तो मैंने सोम का एग्जांपल ले लिया। तो देखो, मान लो ये अपनी धरती है। अब नाउ यू पीपल आर वाचिंग मी, ठीक। आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, या आई एम सिटिंग ऑन द प्लैनेट अर्थ, और आप लोग मेरे को देख रहे हो, मेरे आसपास हो। तो अभी मान लो ये यहाँ पे कौन है? हिमांशु। आई डोंट नो फुल नेम ऑफ हिमांशु। हिमांशु मेरे को स्क्रीन में दिख रहा है। हिमांशु यहाँ पे खड़ा है और ये मैं हूँ, ठीक है। ये मैं हूँ, ये धरती है, और ये हिमांशु है, और कोई पार्टी नहीं हो रही है। तो हिमांशु के लिए माई बॉडी विल बी एट रेस्ट, क्योंकि मैं मूव नहीं कर रहा हूँ। अब क्या हुआ, कुछ सालों बाद सोम त्रिपाठी ने बहुत पढ़ाई की और वो नसा में चला गया। नसा ने उसको, स्पेस में चला गया वो, नासा में स्पेस में चला गया, मान लो मार्स या कहीं भी चला गया, जुपिटर पे चला गया। नाउ सोम इज वॉचिंग मी फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लैनेट। कोई इसके बाद बहुत अच्छा टेलीस्कोप या कोई कैमरा है। तो अब क्या हो रहा है, जो अर्थ है वो लगातार अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। तो जब सोम मेरे को बहुत दूर से देखेगा तो मेरी बॉडी कैसे नजर आएगी? मोशन में। मोशन में। हाँ, बट फॉर अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द प्लैनेट अर्थ, फॉर हिम माई बॉडी विल बी एट रेस्ट। तो यही है रिलेटिव क्वांटिटी। हिमांशु के लिए, जो मेरे बाजू में खड़ा है या जो मुझे सामने से दिख रहा है, उसके लिए मैं रेस्ट में हूँ। लेकिन सोम, जो मुझसे बहुत दूर है, बहुत डिस्टेंट प्लैनेट पे है, एंड इफ ही इज वाचिंग मी, तो उसके लिए मैं कैसा हूँ? उसके लिए मैं मोशन में हूँ। तो दिस इज रिलेटिव क्वांटिटी। किसी के लिए वैल्यू कुछ और है, किसी के लिए वैल्यू कुछ और है। तो यू कैन नॉट कंप्लीटली डिफाइन कि वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, है ना। किसी के लिए रेस्ट में होगा, किसी के लिए मोशन में होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है। इतना क्लियर है बेटा ये वाला एग्जांपल, प्लैनेट वाला? Yes, sir. Yes, sir. Sir. यस ओके सर। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे एक बस वाला एग्जांपल आता है जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है, वो बता देते हैं। मान लो ये बस है, ठीक। ये बस में यहाँ पे एक बंदा बैठा है, दो बंदे मान लो बैठे हैं, और एक बंदा इनको बस के बाहर से देख रहा है। ये बस इज मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। नाउ इफ दिस पर्सन इज लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर व्हीकल, तो उसके लिए ये जो दोनों बंदे हैं, मान लो ये ए है, ये बी है, और ये सी है, तो ये कैसे हो जाएंगे? और भी मोशन में। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी बस के साथ मूव कर रही है। क्यों? और एक चीज क्या हो रहा है, मान लो अभी ये यहाँ पर है, कुछ देर के बाद ये यहाँ पे आ जाएंगे, तो पोजीशन भी क्या हो गई? पोजीशन अपनी चेंज हो गई, और चेंज इन पोजीशन को अपन मोशन बोलते हैं। तो फॉर अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, for him the passengers inside the bus are in motion as they are moving along with the bus. But अगर मैं दो passengers की बात करूं who are seated next to each other and suppose they are talking or doing whatever, अब जो बंदे आजू बाजू बैठे हैं, क्या उनकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर? बताओ। No, sir. है ना, इनकी No, पोजीशन sir. आपस में चेंज नहीं हो No, रही है। sir. तो सिंस देयर पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर,
बोथ ऑफ देम, अगर ये दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो ये कैसे आपस में हो जाएंगे, ये आपस में एक दूसरे के रेस्ट में हो जाएंगे। तो वही है, फॉर अ पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड द बस बोथ दीज पर्सन आर इन मोशन, but if two persons are seated inside the bus and if they are looking at each other, so their position is not changing with respect to each other, as a result of which they will assume that both of them are at rest। ये चीज है। और एग्जाम्पल है ट्रेन वाला। ट्रेन से जब निकलते हो बहुत तेज, जब चलती है ट्रेन, तो जितने भी पेड़ होते हैं वो क्या लगता है, पीछे नहीं जाते बहुत तेज से, ऐसा लगता है, रिलेट है ना, देखा है ना, पेड़ ऐसा लगता है पीछे जा रहे हैं, बट क्या एक्चुअल में ऐसा होता है, होता नहीं, बट अपने को दिखाई देता है। तो अब मेरे लिए पेड़ कैसा हो गया, मैं ट्रेन में बैठा हूं तो मेरे लिए पेड़ मोशन में हो गया। बट इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द ट्री और इफ इज सिटिंग बिलो द ट्री, तो फॉर हिम द ट्री विल बी एट रेस्ट। एक और चीज होती है, जब ट्रेन चलती है आपके बाजू वाली, आप ट्रेन में तो शायद बहुत दिन से बैठे नहीं होगे, बट ये होता है, इफ द ट्रेन दैट इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू योर ट्रेन, इफ दैट ट्रेन इज मूविंग, तो आपको क्या लगता है कि मेरी ट्रेन चलती, कई बार होता है ना, ये इल्यूजन होता है, बट अपनी ट्रेन चलती नहीं है। तो ये सब रिलेटिव मोशन के एग्जाम्पल हैं, जहां पर किसी के लिए ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फिर वही ऑब्जेक्ट किसी के लिए मोशन में है। क्लियर है ये चीज, वाई रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव क्वांटिटीज। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, चलो दैट्स गुड। अब एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो बताओ, उसके बाद क्या दिया रेस्ट और मोशन के बाद। मेरे पास बुक नहीं है एक्चुअली। Sir, origin. ओरिजिन है, चलो ठीक है, Sir, मैं बताता हूँ। describing motion. डिस्क्राइबिंग मोशन ना, चलो ठीक है, बिफोर डिस्क्राइबिंग मोशन let me tell you about another type of physical quantity, that is scalar quantity and vector quantity। ठीक है, तब अपन उसमें आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, अब देखो, based on direction we have two quantities, one is scalar quantity and one is vector quantity। अच्छा, अभी अपन एक वर्ड आपने सुना होगा, एक वर्ड होता है मैग्नीट्यूड। क्या होता है बेटा मैग्नीट्यूड का मतलब, कोई एक बता दो। What is the meaning of magnitude of a physical quantity? Ayan, Swarna, Sir, numerical value of physical quantity, like of weight kgs and हाँ, of length meter, kilometer. very good। Numerical value of any physical quantity is called magnitude। किसने आंसर दिया? Swarna. Okay, Swarna। Swarna Mathli is from, she is from Bihar। Okay, see, magnitude है ना। तो जैसे मैंने कहा कि सपोज माई एज इज 16 ईयर्स, तो 16 मेरी एज का मैग्नीट्यूड हो गया। मैंने कहा आई हैव 10 रुपीज इन माई बैंक बैलेंस या बैंक अकाउंट, तो 10 मेरे अकाउंट का मैग्नीट्यूड हो गया। मैंने कहा कि आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, तो 50 मेरे फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। सो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्लियर है चीज? तो Yes, sir. एवरीवन, अनुष्का, एकता, Yes, sir. Yes, ये sir. कौन सा ए और बी सेक्शन है ना, जीतराज, Yes, sir. Yes, sir. तो आप लोग तो सबसे तेज बच्चे हो गए, ए और बी में सबसे तेज बच्चे होते हैं, isn't it? शफलिंग नहीं हुई है सर, हम लोगों की शफलिंग कभी नहीं हुई थी। ओके, चलो कोई नहीं, पढ़ के भी तेज बन सकते हो ना, ऐसे सेक्शन वाइज क्या तेज बनना। ठीक है, तो अब देखो दो क्वांटिटीज हैं, वन इज द स्केलर एंड वन इज द वेक्टर क्वांटिटी। पहले अपन स्केलर पढ़ते हैं। तो व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज? दे हैव मैग्नीट्यूड but no direction। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया स्केलर क्वांटिटी का, फिजिक्स में हो, आपका एक सबसे कॉमन एग्जांपल है मास। ठीक, अब अगर मैं मास की बात करूं, तो जैसे मेरी, अच्छा व्हाट इज मास, मास की डेफिनेशन क्या होती है? मास क्या होता है बेटा? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट। हाँ गुड, कौन, किसने बताया, ये कौन था? स्वर्ण। स्वर्णा, ओके गुड स्वर्णा।
सी, so what is mass? The total matter contained inside a body. ठीक है, तो if I'm talking about my body, तो मतलब मेरे आगे भी मास है, मेरे पीछे भी मास है, हाथों में भी मास है, ऊपर नीचे हर जगह मास है। तो कहने का मतलब कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये कि मास जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड तो है। सपोज मेरा मास है 50 kg, तो 50 उसका मैग्नीट्यूड हो गया, बट कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, और एग्जांपल क्या है? और एग्जांपल है, दूसरा आपका एग्जांपल है टाइम। मैंने कहा कि अभी 11 बज रहे हैं, तो आपके यहाँ भी 11, ऐसा तो नहीं बोलते ना 11 बज के नॉर्थ या 11 बज के साउथ या 11 बज के ईस्ट। डायरेक्शन तो अपन स्पेसिफाई नहीं करते, टाइम इज यूनिफॉर्म। जो यहाँ पर है वो थ्रू आउट द सराउंडिंग सेम है। क्लियर है? एकता, अनुष्का, विकास, स्वर्णा, जीत, राज। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, yes. चलो ठीक है, तो ये हो गए स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आता है, इसमें और भी आप ले सकते हो, मास, टाइम, टेम्परेचर। टेम्परेचर भी अपन बताते हैं, तो कभी अपन डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज में। अच्छा, इस चैप्टर में जो अपने को पढ़नी है स्केलर क्वांटिटीज, वो है डिस्टेंस, फिर है स्पीड। तो ये दो फिजिकल क्वांटिटी अपने को इस चैप्टर में पढ़नी है, जो स्केलर है, जिसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटीज। अब देखो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज में दे हैव बोथ मैग्नीट्यूड Magnitude and एंड डायरेक्शन। distance. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। तो अब इसका तो एग्जांपल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या है, इसमें अपने को पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट, ओह माय गॉड, Velocity. वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तीन चीजें अपने को पढ़नी है। Acceleration. ठीक है, तो व्हेन वी विल रीड दिस टॉपिक तभी ज्यादा क्लियर होगा। तो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, कितना टाइम बचा है मीटिंग को यार? 11:03 हो गए। चलो एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं, डिस्टेंस पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना क्लियर है अभी तक सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आराम से, Yes, Yes, sir. sir. आराम से, आराम धीरे से। वैसे yes sir, ऐसे भी बोल दोगे तो मैं समझ जाऊंगा, ऐसे चिल्लाओगे तो मेरे कान वैसे ही कम है, सुनाई देता है, और खराब हो जाएंगे। ठीक है, यू कैन लाइक विस्पर इन माई ईयर्स रादर देन टेलिंग इट टू द एंटायर वर्ल्ड। चलो नेक्स्ट जो अपने को पढ़ना है, एक डेफिनेशन बस पढ़ लेते हैं, फिर अपन कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक, नेक्स्ट अपने को पढ़ना है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का एक सिंपल डेफिनेशन है, हाँ, इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। आज पहली बार मेरी राइटिंग इतनी खराब आ रही है यार, पता नहीं क्यों। Maybe it will change in location, कोई बात नहीं। तो व्हाट इज डिस्टेंस? इट इज लेंथ ऑफ टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट जितनी भी लेंथ चल रहा है उसको सिंपली आपको ऐड कर देना है। जैसे एग्जांपल मैंने लिया कि आप सतना से मान लो रीवा गए, और फिर रीवा से सतना वापस आ गए, तो 60 किलोमीटर जाना, 60 आना, 60 + 60 कितना हो गया? आंसर 120। यू हैव टू सिंपली ऐड द लेंथ। मैं यहाँ से स्कूल गया 5 किलोमीटर, स्कूल से वापस आया 5, टोटल हो गया 10। So what you have to do, you have to simply add all the length, that is called distance. So just suppose an object is starting from, एक मिनट, इसको छोटा कर दूं। देखो यहाँ पे, ओहो माउस खराब हो गया मेरा। An object is starting from point A and it is moving towards point B। ठीक, ये A से B का रास्ता है, ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, ऐसा ऐसा ऑब्जेक्ट जा रहा है, ये ऐसा 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 ऐसा। तो ये जो लेंथ है ना, ये पूरा लेंथ, ये जहां जहां मैंने एरो बनाया है, तो दिस टोटल पाथ लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस। अच्छा, अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या रखनी, याद रखनी है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब कोई भी डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है। कैसे नहीं है? देखो
ये आपके डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, है ना, ईस्ट और वेस्ट। अच्छा एक चीज ध्यान देना, जब आप जैसे ये जो मेरा स्क्रीन है ना, ये 2 डायमेंशन है, तो जनरली क्या लगता है, इनफैक्ट मुझे भी छोटे में लगता था कि जो नॉर्थ है वो ऊपर है, साउथ नीचे है, बट ऐसा नहीं है। नॉर्थ आपके सामने है, साउथ आपके पीछे है, ईस्ट में अपने को राइट लेना है और लेफ्ट में अपने को वेस्ट ले लेना है। क्लियर है इतना? हम्म। Yes, sir. हाँ, Sir. ऊपर ऊपर Yes, sir. अपवर्ड है, नीचे डाउनवर्ड है ना, नॉर्थ सामने है, क्योंकि ये स्क्रीन 2D है तो इसलिए ऊपर बना। अगर 3D होता ना तो सामने दिखाई देता आपको। हाँ, तो ये आपके 4 डायरेक्शन है। सपोज मुझसे कहा किसी ने कि ये पॉइंट सी पर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्या है, तो ये ऐसा आ गया डायरेक्शन। ये कौन सा डायरेक्शन आ गया? नॉर्थ ईस्ट। फिर किसी ने मुझसे पूछा कि मान लो ये पॉइंट डी है, यहाँ पे ये पॉइंट डी पर डायरेक्शन क्या है, तो ये डायरेक्शन ऐसा आ गया, तो ये कौन सा डायरेक्शन आ गया? साउथ ईस्ट। तो मान लो किसी ने पूछा ये यहाँ पे पॉइंट ई है, तो पॉइंट ई पर डायरेक्शन क्या है? इस तरफ ईस्ट, ऐसा। तो व्हाट इज हैपनिंग विथ द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीत रहा है ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है मतलब कोई कांस्टेंट डायरेक्शन नहीं है। कांस्टेंट डायरेक्शन नहीं है मतलब एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। एक, तो scalar quantities are those quantities that do not have a particular direction or they keep on changing their direction with time. Is it clear? So distance is a scalar quantity. Clear है Yes, बेटा? ओके, yes, हाँ sir. अब इम्पोर्टेंट Yes, चीज, sir. Yes, sir. हाँ ओके ओके, विस्पर विस्पर, हाँ इम्पोर्टेंट चीज क्या याद करनी है? द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। ठीक है, एसआई मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ये जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल है, दीज यूनिट्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। आप कहीं भी चले जाओगे तो आपको मीटर में लेंथ मेजर करके दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, है ना? नहीं तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, isn't it? तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टडी, मतलब थोड़ा फिर से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपन दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर है? Okay, sir. Yes, sir. सर, Yes, sir. sir can you please upload this on the channel as my internet connection is not constant. Yeah, I think I have downloaded or done something. I'll try to upload if it has been recorded, है ना? अब कोई पेड वर्जन तो है नहीं मेरे पास जूम का। तो लेट्स स्टडी टुमारो। और सुनो एक चीज, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, लाइक ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स कॉपी। वैसे मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, but if you're writing by your own that will be good, because in class 9 most of the questions that are coming you have to answer in your own words. तो एक बार खुद से नोट्स प्रिपेयर करोगे तो you will get in the habit of writing by your own words. Is it clear? स्निग्धा, एकता, Yes, sir. गगन, सोम, Yes, अक्षिता। sir. ओके चलो ठीक है, होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। और कोई डाउट हो तो यू कैन व्हाट्सएप मी, है ना? ओके हाँ, बट एक टाइम Yes, पे sir. करना, वैसा नहीं कि रात के 12 बजे मैसेज कर रहे हो, है ना? There is a definite time you can message me if you have any doubt and then we'll study tomorrow. Clear है बेटा? चलो ओके ना, Yes, फिर sir. बाय फॉर टुडे, लेट्स स्टडी टुमारो। ठीक, Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, थैंक sir. यू, Thank ओके you, बाय sir. बाय बाय। विस्पर विस्पर, डोंट शाउट। चलो बाय बाय। Thank you, sir. चलो Nice थैंक यू, background, sir. हाँ वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू।